So in the previous class we have studied about the surface area of cone. हमने बात की थी कर्व surface area और total surface area of cone की, है ना? The कर्व surface area is pi r l और अगर अपन area of base ले लें तो pi r square उसमें ऐड हो जाता है. हमने उस दिन करी थी क्वेश्चन, ठीक है? चलो आज बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की. Volume of cone, as I have told you earlier also. Suppose there is a cylinder, and what we are doing is we are carving out a cone out of it. तो उसी बेस डायमीटर की जितना सिलेंडर का डायमीटर था उतना ही कोन की हाइट भी उतनी ही रखते हैं जितनी सिलेंडर की थी, और इस कोन को यहाँ से कर्व आउट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है? द कोन सो ऑब्टेन, द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन विल बी 1/3 of volume of cylinder. And volume of cylinder is pi r square h. When the volume of cylinder is pi r square h, it is 1/3 of it, 1/3 of the cylinder, right? Simple. So 1/3 pi r square h is the formula for finding out the volume of cone. First thing. Secondly, you can calculate it also. I have told you earlier also that whenever the school will restart, the school will reopen properly, then what we are going to do is that we will take out some conical flask and some cylindrical flask of the same diameter and same height. We will observe, we will do this practical in the lab, okay? We will observe that when we will try to fill this cylindrical beaker with the conical vessel or the conical beaker, then it will take twice. Twice means like first time जब भी आप इसमें पोर करेंगे पानी इसके अंदर सिलेंडर बीकर में, तो ये 1/3 फेल होगा. दूसरी बार भरेंगे तो इसका फिर 1/3 भरेगा, और तीसरी बार भरेंगे तो फिर भी 1/3 इसका और एक बार आएगा. तो आप देख सकते हैं that the volume of cylinder is 3 times the volume of cone. The volume of cylinder is 3 times the volume of cone. So simply अगर हम इस सिलेंडर में से कोन को निकाल लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, so the volume of this cone will be 1/3 of volume of cylinder. याद रहेगा? सिलेंडर का फॉर्मूला तो याद ही था, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3. So 1/3 of volume of cylinder is volume of cone. The exercise, the complete exercise is based on this formula, this concept only, right? चलिए कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस को करने की, है ना? I am leaving those questions which are given in the very simple format where radius is given to us, height is given to us, like that. So what we are going to do is we will talk about the questions where we need the calculations and all, okay, right? चलिए कोशिश करते हैं जरा करने की. Let's talk about your third question first of all. I am leaving the first and second question, they are based on formula only. Of course third is also based on formula, but थोड़ा different है. चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है? चलिए what is given to us, clear करते हैं. It is a right circular cone with height 15 centimeter. So height is 15 centimeter, and the volume is given to us. Okay, the volume is given to us as 1570 centimeter cube. 1570 centimeter cube. Okay, ठीक है. वॉल्यूम दे दिया, हाइट दे दी, फिर क्या पूछा इसने? The diameter. रेडियस और डायमीटर ऑफ द बेस पूछा, ठीक है? ओके, रेडियस पूछा इसने, ठीक है? पाई की वैल्यू दी है, गुड, बिल्कुल पाई की वैल्यू दी है, और पाई की वैल्यू दी है 3.14. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी 3.44 लेने से, 14 लेने से. अगर हम 22.7 लेंगे तो कैलकुलेशन विल बी नॉट इजी एज सच. ओके, चलो. सो वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, पाई की वैल्यू भी दे दी है, रेडियस पूछा है, क्या करें? वॉल्यूम दिया है, We will apply the formula. we will apply the formula. Put the values in the formula. Right, we are going to put the values in the formula. So volume of a cone is 1/3 pi r square h, है ना? वॉल्यूम दिया हुआ है 1570, 1/3. The value of pi is 3.14. Right, he says that's 3.14. That is an indication that the calculation will be easy with 3.14. R square, which we don't know, which is to be calculated, and into height. The height is 15 centimeters. 15 centimeters. So I am giving you 1 minute to R do the is equals calculation. to 10.
R अरे is वाह, equals to 10. R is equals to 10. चलिए गुड, करते हैं कैलकुलेशन जरा। कैलकुलेशन कॉपी नहीं करना है, कैलकुलेशन अपने आप करते हैं, हमें मालूम है अच्छी तरह से, है ना। डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। Diameter is equals to 20 centimeters. ओके बेटा, Yes, sir. 1570 divided by 3.14 into 5 is equals to R square। अपनी कैलकुलेशन कीजिए। वन 570 into 100 upon 314 into 5। So we can cut 5 and 100. Okay, so R square is equals to 100. R is equals to 10 centimeters. I don't know what he is asking for, the diameter or the radius. If the diameter he is asking for, then the answer is 20 centimeters. if he is asking for the diameter, the answer is 20 centimeters. And if he is asking for the radius, the answer is 10 centimeters. Done. Simple. That's that. You got my point, huh? We are on the 7th exercise, I suppose, right? What I want to say is that the questions in which the radius is given to us, the height is given to us, we need to do the calculation only. I'm leaving those questions for you. I suppose this much I can do for a 9th class student. कर सकता हूँ ना, 9th class के student से उम्मीद कर सकता हूँ ना कि वो तो ये तो कर ही लेंगे वो, है ना? Easy question. Yes, sir. Yes, sir. Good, चलो next question लेते हैं। Shall I move? Okay. Let's take the next question, 4th only. Just go through this question once again. The fourth. Read it twice. Read it twice. Okay. मुझे एक रिस्पॉन्स मिला ऑनलाइन कि सर क्वेश्चन तो सेम ही है ना। चलो सेम है तो देखते हैं बेटा। What is given to us? Height is equals to 9 centimeter. 9 centimeter. Volume 48 pi centimeter square. Right. Sorry, Volume 48 pi centimeter cube. वॉल्यूम भी गिवन है, बढ़िया, और वो भी पाई की टर्म्स में दिया हुआ है, कितना अच्छा है। कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी 22/7 वाली। सो डेफिनेटली हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं तो हम इसका डायमीटर भी निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल। आई एग्री विद यू। व्हाट इज द आंसर? डू द कैलकुलेशंस एंड लेट मी नो। Sir, 4. The So diameter is and the equals answer to is 8. 8. Diameter is 8 and radius is 4. Okay, that I'm giving you few more seconds. Do the calculation and let me know the answer. Just confirm. The radius is 4 centimeters. Okay, radius is 4. ठीक. Diameter is 8. Diameter is 8. Okay. 8 centimeters. It's very easy. Volume is 1/3 pi r square h. Volume is given to us as it was given in the previous question. Height is given to us. It was also given in the previous question. It is same as the previous question was. The volume is 48 pi. 1/3 pi r square, which we don't know, and the height is 9. इससे सिंपल और क्या होगा, जिसमें कैलकुलेशन करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो 3 या 9 पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो आपको अगर ट्रांसपोजिशन की आदत है आप ट्रांसपोजिशन करके कर दीजिए। 48 पाई डिवाइड बाय 3 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पाई से पाई तो गया, पाई पाई का हिसाब कर दिया अपन ने। देखो हम कितने अच्छे हैं। क्या 22/7 करना, क्या नाटक करना 3.14? जब पाई है तो पाई तो गया, डिवाइड हो गया, और क्या 3 16 और 48। So R is equals to 4 centimeter. He is asking for the diameter. The diameter is 8 centimeters. Final. Easy, simple formula based questions बच्चे।
देखिए ना, आपको वॉल्यूम गिवन था, आपको हाइट गिवन थी, रेडियस निकालना है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अपन अगर वैसे देखें तो 73 सॉरी, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ, अगर हम वैसे देखें तो देखो, जिसमें क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। तो आप उसके लिए तो मैं आपको मतलब क्या गाइड करूंगा उसमें, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर, नो? ठीक है, आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इट वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल। इन टर्म्स ऑफ पाई इट वॉज गिवन, वॉल्यूम अगर पाई के टर्म्स में दिया हुआ हो या कुछ दिया हुआ हो तो और भी अच्छा है, आराम से कैलकुलेशन हो जाती है ना? चलो, हाँ जी बेटा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें 6 क्वेश्चन दिया आता है, उसमें भी वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को, उसमें रेडियस दिया हुआ है, यही कह लीजिए डायमीटर दिया हुआ है, एक ही बात है, डायमीटर दिया हुआ हो, रेडियस दिया हुआ हो, तो हाइट निकाल सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना? आई एम लिविंग दैट क्वेश्चन ऑल्सो। लेट्स मूव टू द conceptual question, and that is the 7th question. Conceptual means concept based, तो थोड़ा सा हमें समझना भी जरूरी है ना? It says there is a right triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. ठीक है, इमेजिन करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल हो whose sides are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. राइट? एक चीज श्योर है, हम 12 या 5 को तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन 13 को यही लिखेंगे। रीजन बताएगा कोई कि मैंने 13 को यहाँ पे क्यों लिखा? Such slant Because height. hypotenuse is the longest side. राइट, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 13 तो फिक्स है, 13 ही होगी, ये कभी भी सबसे छोटी नहीं हो सकती या बड़ी नहीं हो सकती है, सबसे बड़ी ही होगी, मतलब छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो 13 तो ये फिक्स है। 12 और 5 इधर हो सकते हैं, ये 12 हो सकती है, वो 5 हो सकती है, ये 5 हो, ये 12 हो, ऐसा कुछ हो सकता है ना? ठीक है ना? अब क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है इट इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर। इट इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर के आसपास घुमा दी गई। इमेजिन करते हैं, चलो इमेजिन करते हैं एक अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये छोटी साइड है, इसको 5 कह देते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको 12 कह देते हैं, ये वाली साइड जो है 13 सेंटीमीटर कह देते हैं। ठीक है, इट इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, तो ये साइड तो कर दी अपन ने फिक्स, और अब इसको रिवॉल्व करवा देता है, करवा दे, ऐसे घुमा देते हैं इसको। ठीक है, इमेजिन कीजिए अगर हम इसको जोर से यानी कि स्पीड से घुमा दें तो ये 2 डायमेंशन नहीं लगेगी, ये 3 डायमेंशन लगेगी, और ये ऐसा लगेगा जैसे आप कोन घुमा रहे हो। इमेजिन करके देखिएगा, इमेजिन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हाइट भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये तो मान क्या लीजिए, ये रेक्टेंगुलर पेज ही है ना? इस रेक्टेंगुलर पेज को यहाँ से फिक्स कर देते हैं और उसके बाद में इसको जोर से घुमा देते हैं। इमेजिन कीजिए अगर ये ऐसे घूमता हुआ अगर अपने को नजर आए ना, तो ये हमें एक सिलेंडर नजर आने लग जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे सिलेंडर है, जो घूम रहा है वो एक पेपर नहीं है, एक सिलेंडर है ना? तो इसी तरह से यहाँ पे है, इट इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हुई और 12 सेंटीमीटर के अबाउट इसको घुमा दिया, तो अब ये घूमेगी तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये कोन घूम रही है। ठीक है, इट विल लुक लाइक एज इट इज अ कोन। It says find the volume of the solid so formed. It is not formed. It is so formed. It appears to be virtually ऐसा लगेगा कि वो एक कोन घूम रही है, तो उस कोन का वॉल्यूम बताएं इन टर्म्स ऑफ पाई। वापस से इस बुक में चाहे तो ब्रैकेट में लिख देना, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, नीड नॉट टू कैलकुलेट पाई, पाई की कैलकुलेशन नहीं करनी, इन टर्म्स ऑफ पाई बताना है। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम पूछा ना अपने से, सो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट ऑफ ऑल कोन का फॉर्मूला लगाया, ये समझ में आ गया कि वो कॉनिकली शेप नजर आएगी। यस सर। एक ट्राइंगल को अगर अपन ऐसे रिवॉल्व करवा दें तो ये कोन नजर आएगी। ठीक है, एक रेक्टेंगल को अगर अपन इस तरह से एक रेक्टेंगल को अपन अगर इससे कर दे तो ये सिलेंड्रिकल शेप में लगेगा, ये ऐसा लगेगा जैसे सिलेंडर घूम रहा है। ठीक बात है ना? चलो, सो 1/3 पाई, व्हाट विल बी द रेडियस?
5 5 centimeters. centimeters. 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल ये जब घूमेगा तो ऐसा लगेगा जैसे 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर की वो वर्चुअलिटी लगेगी, मतलब आभास लगेगा, ऐसा आभास होगा जैसे एक कोन घूम रहा है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 स्क्वायर रेडियस। एंड व्हाट विल बी द हाइट? 12 centimeter. 12 centimeter. सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, Sir, ठीक है। 100 pi centimeter cube. Sir, 100 pi 100 centimeter pi cube. centimeter 100 cube. बिल्कुल बेटा, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसको ना क्लॉज साइड में लिख, मतलब ब्रैकेट में लिख देना इस क्वेश्चन में, कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई मीन्स पाई की कैलकुलेशन नहीं करनी, उसको 3.14 नहीं लिखना, उसको 22/7 में लिखना, उसको पाई की टर्म्स में देना है, ठीक है ना। देखिए बेटा, अभी हम ये कह सकते हैं यू आर यंग, यू आर इन नियरली 9th क्लास, 10th क्लास तक आप पाई 22/7 लिख रहे हो, लेकिन 9th क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज 22/7। वो गलत है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, गलत है, 22/7 इसकी वैल्यू नहीं होती है ना। सो 10th तक तो आप 22/7 ले रहे हो। 11th में मैं ही खुद ही एज अ मैथ्स टीचर ही आपको डांटूंगा, क्या करते हो, पाई की वैल्यू होती है क्या कोई, ठीक है। तो हम आंसर पाई के टर्म्स में देते हैं, तो आपको थोड़ा सा शायद अजीब लग सकता है कि आंसर वो भी पाई, 100 पाई आंसर क्या होता है? आंसर यही होते हैं बेटा, जब 11th एंड ऑनवर्ड्स जब आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे आंसर पाई के टर्म्स में ही आते हैं, हमारे 22/7 में कैलकुलेशन नहीं करते अपन, वो गलत है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन यही था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। इट इज नॉट फॉर्म, इट इज सो फॉर्म। वर्चुअली लग रहा है ना, कैसी बनेगी, कौन बनेगा, तो कौन का वॉल्यूम बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इसी का कंटिन्यूअस क्वेश्चन है। वो कहता है अगर जो ये कोन था जो आपके पास में, इनफैक्ट कोन भी नहीं था, एक ट्राइंगल था, उसको अगर आप, इट इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, if it is made to revolve about 5 centimeter, then what will be the volume of the solid so formed? It is made to revolve about 5 centimeters. What will be the volume of the solid so formed? क्या पिछले वाले से क्वेश्चन चेंज हो गया? Yes, sir. हो गया। क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ इसमें? Sir, now it will be 12 centimeter. राइट, Height राइट, is 5 centimeter. यस, बिल्कुल चेंज हो गया। अब हाँ जी बेटा, Yes, sir. हाँ जी, चलिए तो देखिए फिर से, अभी भी ये कोन ही है, लेकिन आपकी बार थोड़ा सा शेप जो है कॉनिकल तो है, लेकिन अजीब हो जाएगी। अजीब इन द सेंस, पहले हाइट लंबी थी, आपकी बार हाइट हो जाएगी छोटी। पिछली बार रेडियस छोटा था, इस बार रेडियस हो जाएगा बड़ा, है ना। तो कहता है अगर ये ट्राइंगल आपके पास में, एंड इट इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, if we are having the same triangle, if it is made to revolve about 5 centimeter, what will be the volume of the solid so formed? अब आंसर आपकी तरफ से 240 pi. Sir, 240 pi centimeter cube. 240 pi. 240 pi. करने दो आपके बाकी फ्रेंड्स को भी करने दो। 240 pi. ठीक बेटा, 240 pi. करने दो सबको, अपने फ्रेंड्स को भी करने दो एक बार, है ना, उनको भी निकालने दो आंसर। दिस टाइम ऑल्सो वी आर हैविंग अ कोन, लगेगा तो अभी भी कोनिकल ही शेप में, लेकिन इस बार में और पिछली बारी में अंतर यही हुआ कि इस बार 1/3 पाई, रेडियस 12 नहीं है, रेडियस 12 है, रेडियस 5 नहीं है ना। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस आया है वो हमें समझ में आना चाहिए था। 13 will remain the same, it is the hypotenuse, उसका कोई रोल नहीं है। हाइट पिछली बार 12 थी, रेडियस 5 था, बिकॉज इट वॉज मेड टू रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, तो इट वॉज मेड टू रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर। इस बार इट इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट
5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया और फिक्स करने के आसपास घुमा दिया उसको, ठीक है जी। तो सर इस बार 245 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, बिल्कुल 240 पाई आंसर आ रहा है क्या? आर Yes, sir. स्क्वायर हो Yes, जाएगा sir. 12 का Yes, sir. स्क्वायर इनटू हाइट हो जाएगी आपकी है 5। मीटर। बिल्कुल ठीक है। सो 1/3 पाई 144 इंटू 5, 3 4 आर 12, 3 8 आर, है ना। सो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये कैलकुलेशन यस है ना। सर। अब उसने Yes, जाते sir. जाते एक टेल एंड क्वेश्चन और दे दिया। हम जानते हैं ना टेल एंड क्वेश्चन क्या होता है, मेजर जो कोर क्वेश्चन होता है उसके साथ में एक छोटा सा पपलू टाइप का क्वेश्चन। वो पपलू क्वेश्चन उसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स सो ओपनिंग इन द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस। जो पिछला केस लिया था, पिछले 7th क्वेश्चन में जो रेशियो आया था, मतलब वॉल्यूम आया था वो, और जो 8th क्वेश्चन में वॉल्यूम आया वो, उनका रेशियो भी निकाल दो वॉल्यूम का, निकाल सकते हैं ना। 5/245। ठीक है बेटा, तो रेशियो इन द ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इन द फर्स्ट केस वाज 100 पाई, आई सपोज। पिछले क्वेश्चन में 100 पाई आया था Yes, ना, sir. और इस बार आया है Yes, sir. 240 पाई। रेशियो लेना है। गॉट द क्वेश्चन? इट सेज फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स सर in these two cases, in the which you will have obtained in the 7th question and in the 8th question, right? 5:12। पाई का हिसाब कीजिए। यस सर 5:12। बिल्कुल। Five So is to 12 is to 24 is 5 is to 12। सही है ना, सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको बात समझ में आनी चाहिए थी कि हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये कौन घुमाओ ऐसे या ऐसे घुमाओ, एक ही बात है। नहीं, क्यों? क्योंकि रेडियस चेंज हो जाएगा और रेडियस का स्क्वायर हो रहा है। मतलब एक ड्रम ऐसा हो जिसकी हाइट ज्यादा हो और रेडियस कम हो, और एक ड्रम ऐसा हो जिसकी हाइट कम हो और रेडियस ज्यादा हो। दोनों की कैपेसिटी सेम नहीं हो सकती। अपन ये सोचे कि दोनों बराबर ही बात है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, आर को 2 बार मल्टीप्लाई होगा और हाइट 1 बार ही मल्टीप्लाई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने ग्रेविटेशन में भी किए होंगे, फिजिक्स में, आपने फोर्सेस में भी करे होंगे, है ना। गॉट द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. And can I run? Yes, sir. हटा दूं इसे, रब कर दूं? ओके, चलो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है। ठीक है, वापस से रूल वही है अपना कि जो क्लास में डिस्कस किए गए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं किए गए हैं वो उम्मीद की गई है कि हमसे खुद से हो जाएंगे। नहीं होंगे तो हम अगले दिन रिपोर्ट भी करेंगे टीचर को कि हाँ सर जो बाकी छोड़े थे उनमें से ये नहीं हुआ। ठीक है ना, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ बच्चे, लॉस किसी का नहीं होगा आपके अलावा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meters. Sorry, a heap of wheat, ठीक है, एक गेहूं की ढेरी है और वो हीप किस फॉर्म में है? कॉनिकल शेप में है, विद डायमीटर 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। ठीक है, सिंपल है, एक सिंपल सी बात है ना। एक कॉनिकल, आपने गेहूं की ढेरी देखी, उसका शेप परफेक्ट कॉनिकल नहीं होती, लेकिन ये कह रहा है चलो कॉनिकल है तो मान लेते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉनिकल हीप whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meters. ठीक है, if the diameter is 10.5 then what is the radius? 5.25 meter. 5.22. We can say 5.25 also. 5.25। बिल्कुल, हम 5.25 भी कह सकते हैं, और अगर नहीं तो हम इसका डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में लिख देते हैं ताकि अपने को इजी हो जाए करने में। ये हो जाएगा 21/4। सही है ना, 21/4 इज बेटर देन राइटिंग इट पॉइंट। वैसे 5.25 भी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हुए अपॉन 100 करेंगे, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे किसी से भी, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स इसको को प्राइम्स में बदलेंगे, तो वी कैन राइट 21/7 ऑल्सो। ठीक, छोटी बात है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, छोटी बात है ना।
क्वेश्चन भी छोटा सा ही है, वो कहता है जी वॉल्यूम निकालो इसका, वॉल्यूम ऑफ द हीप। द फॉर्मूला इज बिल्कुल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। साथ साथ में ही फॉर्मूले याद करते जाइएगा, ये मत छोड़ना कि अच्छा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर ही है, फॉर्मूले तो मैं एक दिन बाद में बैठ के याद कर लूंगा, नहीं याद नहीं होंगे, इनफैक्ट कंफ्यूजन और क्रिएट कर देंगे दिमाग में। ठीक, चलो कैलकुलेशन करें, वॉल्यूम बताएं मुझे। 693/8। 3.14 तो नहीं ले रहा था? नहीं, वन बाई 3 पाई 20/2/7 into radius 21/4, 21/4 because it is r square into height is 3। तो वॉल्यूम अपने पास आ जाना चाहिए। गंदी कैलकुलेशन है लेकिन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 7 3 are 21, 2 are 11 are। हाँ जी बेटा 63 693/8 मीटर क्यूब। बिना डेसिमल के तो ये आ रहा है 86.62. Is it correct? Up to this part is Yes, correct? sir. Yes, sir. Yes, And it sir. is 82 point 86.62. 625. 625. ओके 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, मान लिया आपकी बात। आ गया वॉल्यूम? वॉल्यूम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, चलो ओके, वॉल्यूम आ गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है हीप इज टू बी कवर्ड विद अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। The heap is to be covered with a canvas to protect it from rain। इसको कवर करना है वो भी कैनवस से यानी कपड़े से और बारिश से बचाने के लिए। ठीक है, बात सही है। What is the area of the canvas required? What is the area of canvas required? So we remember the formula is pi r l। Fire. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है ना? ठीक है ना, वॉल्यूम तक तो क्लियर है। चलो पाई आर एल, एल का मतलब होता है स्लांट हाइट, अपन पहले भी कर चुके हैं ये बात। ठीक है, ये है अपने पास में कोन जिसका ये है रेडियस, ये है हाइट और ये है स्लांट हाइट। हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल निकालना पड़ेगा इसका, है ना, यानी कि स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। चलो करते हैं कैलकुलेशन। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये रिलेशन भी याद होगा। ठीक, एच का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर 5.25 का स्क्वायर कर लीजिए या 21/4 का कर लीजिए, एक ही बात है। सो मैं तो 21/4 का स्क्वायर करना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे 21 और 4 दोनों का स्क्वायर याद है। ठीक है, दिस इज 9 प्लस 441/16। 441/16। The LCM is 16. 6 9 are 54, 4 5, so 144 plus 441/16। कैलकुलेशन ज्यादा है इसीलिए ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वैसे तो अपन एक्सरसाइज कर चुके हैं पाई आर एल वाली। 585/16। 585/16। 585/16। अब ये 585 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ये तो एल स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, ये तो अपने पास एल स्क्वायर आ रहा है। अब चेक करें जरा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अपन ये कर दिया, इसमें 585 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 16 का तो चलो 4 हो जाएगा, 585 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब हमें 8th क्लास को रिकैप्चुलेट करना है, व्हाट वी हैव स्टडीड इन 8th क्लास। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला एक चैप्टर था, याद है?
चलो, यस सर। कईयों को याद होगा, कुछ भूल भी हो गए होंगे। दूसरी बात, आप में से शायद कुछ बच्चे राजस्थान बोर्ड से आए होंगे, आरबीएसई से, कुछ स्कूलों से जहां पे 8 तक की स्कूल था और आरबीएसई का स्कूल था, वहां पे 8 बोर्ड, मतलब यूं कह लीजिए राजस्थान बोर्ड दे के आए होंगे। उन्होंने डेसिमल नहीं या परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा होगा, शायद नहीं सिखाया गया उनको, उनके सिलेबस में नहीं था, उनकी बुक में नहीं था। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो इतने परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं होते, उनको कैसे निकालते हैं उसकी आज बात करते हैं। अगर आज बात खत्म होगी तो ठीक, नहीं तो इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे। अगेन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन से अलग लेके जा रहा हूँ, इसलिए ताकि हम में से जिन स्टूडेंट्स को जिन्होंने स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा, परफेक्ट स्क्वायर, वो निकालना सीख लें। ठीक है, चलो क्लियर है ना? आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि L जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 585/4 होगा। यस सर। 585 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसकी बात करता हूं। ठीक है, और स्पेशली वो जो आरबीएसई से आए हुए हो। नहीं, टाइम ही नहीं बचा आज, चलिए इसको कंटिन्यू भी करेंगे कल। ठीक है, वैसे मैं स्टार्ट कर देता हूं आज टॉपिक को, कल इसको कंटिन्यू करेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते बोल के। डेसिमल के बाद 2 जीरो तक करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल ऐसे लेते हैं। यस सर। आपको ये याद होगा, एक चैप्टर आपने भी करा है, चैप्टर तो आपने भी किया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला, उसमें यूनिट टेस्ट से हम पेयरिंग शुरू करते हैं। जैसे अपने पास 1 7 2 8 हो ना, तो हम 2 एक टाइप का बनाते हैं, एक 17 का बनाते हैं। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते थे। यहाँ पे जो डिजिट लेना है वो यहाँ पे भी लेना है, यानी डिवाइजर और क्वोशिएंट की डिजिट जो है वो सेम होने चाहिए, है ना? हम यहाँ पे करें, अगर हम यहाँ पे 5 5 ले तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 4 4 16 1 आ जाएगा, 1 रह जाएगा। इस पूरे पेयर को नीचे उतारते हैं तो 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 + 4 8 लिखते हैं, 8 और आगे डैश, एक डैश। चलो ठीक है, इस डिजिट का सेक्शन अपन सोच के करते हैं क्या होगा। अगर हम 82 × 2 भी कर देना तो गड़बड़ हो जाएगा, 81 तो 81 1 ही आएगा, है ना? 81। अब यहाँ पे ऑनेस्टली बताइएगा, ये चीज याद है क्या आपने को यहाँ तक? यस सर। Yes, आपने sir. करी हुई है? ये सबने करी हुई इधर भी होगी। कराई थी एक दिन। हाँ, ये बिल्कुल मैं आप सही बोल रहे हैं, ये मैंने एक दिन करवाई थी, हीरोज फॉर्मूला कराते हुए भी करवाई थी, है ना? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी है, आपने यूनिट टेस्ट से पेयरिंग करना शुरू किया, 5 अनपेयर्ड रह गया, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, बिल्कुल। सो 2 are 4, 1 आ जाएगा और 85 वाला पेयर आ जाएगा। ठीक, 2 + 2 4, एक डिजिट नहीं लेनी होती है, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, सो ये जाएगा 176, है ना? 5 ले सकते थे, 5 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लास्ट में से इज गोइंग ऑन, वी विल कंटिन्यू दिस थिंग वंस अगेन टुमारो। ओके, अगर आप में से किसी को नहीं आता हो तो सीखते हुए चलिएगा। आपके पास 9 आ गया, डेसिमल था वो डेसिमल ऊपर चला गया, ये पेयर जो है वो नीचे आ गया, ये 900 हो गया, और 44 + 4 यानी कि 48 हो गया। 8 डिजिट लेना है, और अगर हम इसको 2 से कर लेंगे तो देखिए जरा, 482 × 2 4 16 1 9, गड़बड़ हो जाएगी, तो अपने को क्या लेना चाहिए? 1। सो ये हो जाएगा अपने पास 481 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलेगा, 419। ठीक है ना? आगे करते रहेंगे बेटा, इसको कंटिन्यू करेंगे कल, राइट? अपनी एल जो थी, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सो एल जो थी वो √585/4 थी, 4। सो एल हो जाएगा अपने पास में 24.1, जो भी आपके पास आ रहा है, /4, तो 6 point something विल बी एल, तो पाई आ